آپ دیکھ رہے ہیں G7 ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر ٹرینڈ کر رہی ہے اور آپ نے بخوبی میرے خیال میں دیکھا ہوگا کہ اپر کوہستان ایکشن کمیٹی کے اوپر کچھ الزام لگے ہیں. الزام ہے یا حقیقت ہے، ہم دونوں کے موقف جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال دونوں کو ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں. ایکشن کمیٹی ہے یا ایکشن کمیٹی کے اپوزیشن میں جو لوگ ہیں ان کو ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں اور ان دونوں کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں کافی دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے آج سے پہلے میرے خیال میں 2-3 ولاگس میں یہ بات ذکر کیا ہوا ہے کہ لوگ اپنی مفاد تک محدود رکھتے ہیں. اگر ان کو ان کا مفاد مل گیا تو کوہستانی عوام کے بارے میں نہیں سوچتے. اگر ایسا ہوا ہے تو بہت برا ہوا ہے. اگر نہیں ہوا ہے، ویسے الزام تراشی کیا گیا ہے یا کیا ہے حقیقت، تو دونوں سائڈ کو ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں. یہ خبر میرے خیال میں پہلے ہم نے لگانا تھا پہلے دن، لیکن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. اب آج بھی میرا آواز نہیں نکل رہا ہے، میرا گلا خراب ہے اور سر میں درد ہو رہے، تو اسی وجہ سے وہ بر وقت نہ ہو سکے. لیکن ہم نے کوشش کیا ہے، جو ہی خبر پہنچی تو ہماری ٹیم نے اس کے اوپر ورک کیا اور ہم نے کوشش کیا کہ جو حقائق عوام کے سامنے رکھیں. تو دونوں سائڈ کے جو ایکشن کمیٹی کے کچھ ممبران ہیں ان کو ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں اور جس نے الزام لگایا ہے اس کو بھی ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں. چلتے ہیں انہی کی طرف. کیا کہ دونوں سائڈ کا رخ آپ کو دکھانے کے، لیکن بدقسمتی سے ملک افضل شاہ صاحب کا ٹیلی فون لائنز آف آ رہا ہے اور بزی مل رہا ہے، تو وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے. اور ہمارے ساتھ ایکشن کمیٹی کے 2 ممبر جڑ چکے ہیں. ہم ان کے کمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں اور افضل شاہ صاحب سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، جس وقت اس نے اپنا موقف دینا چاہا تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے اوپر اس کے لیے کھلا ہے اور ہماری پوری ٹیم اس کے اوپر تحقیقات ہم بھی کر رہے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے. دونوں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ G7 ٹی وی کو ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو برادر. سب سے پہلے ناظم صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے بھی بخوبی دیکھا ہے کہ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گردش کر رہے ہیں. جی بھائی. افضل شاہ کے حوالے سے میرے خیال میں ایکشن کمیٹی کے سینئر ممبر تھے، رکن تھے، جو کچھ تھا آپ لوگ بہتر سمجھتے. کیا اسی وقت افضل شاہ ایکشن کمیٹی کا حصہ ہے یا نہیں؟ حلف کا پابند ہے، باقی ایسا رہتا ہے نہیں رہتا ہے وہ اس کی اپنی انا ہے نا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن حلف کا پابند ہم سارے ہیں. حلف آپ نے لیا تھا؟ ہم نے دیکھے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے ہم نے حلف لیا ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے پورے اپر کوہستان کے حقوق کے اوپر لڑائی کریں گے اور حقوق کے لیے لڑیں گے. اپنی جان بھی جاتی ہے تو جائیں، لیکن ہم کوہستانیوں کے حقوق کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے نکلے ہیں. اپنے مفادات کو ترک کر کے کوہستان کے حقوق کو سامنے رکھیں گے، یہ کمٹمنٹ ہوا ہے آپ کا؟ جی جی جی. تو ابھی آپ کس حد تک دیکھتے ہو جو خبر چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں حقیقت ہے یا نہیں؟ دیکھیے G7 ٹی وی 2020 میں ہم نے انجمن تحریک کوہستان کے نام سے ایک زبردست تحریک شروع کی تھی جو آن کیمرہ شروع تھی، آپ کو پتہ ہے. بالکل. اسی تحریک کو نیست و نابود کرنے میں یہی ہمارے کوہستانی چند ہی لوگ ہیں جن کی حرکتیں اور جن کی کاوشوں سے وہ تحریک ہماری ختم ہوئی. بعد میں آر پار بنا، آپ کو صحیح پتہ ہے. یہاں دیکھیں وابڈا بہت بڑا ظالم ادارہ ہے اور وہ جو ہے نا پانی کی طرح، دریا کی طرح وہ پیسہ چلاتا ہے. بالکل. اور لوگ بھی جو ہے نا کمزور اس کے ہوتے ہیں، تو میرے طرح لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا بیچ میں یہی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے پورے کوہستان کی تباہی کے سبب بنتا ہے. میرے خیال میں آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ وابڈا پیسوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور ایکشن کمیٹی میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل میرا یہی. کیا یہاں پہ ایکشن کمیٹی کے اوپر پیسے خرچ ہوئے ہیں؟ یہ ان کی کوشش ہے نا کہ دیکھو یہ بھی حربت جو ہے نا وہ وابڈا والوں کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں ہیں جو لوگ پھیلا رہے ہیں. افضل شاہ بھائی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. افضل شاہ بھائی نے لوگوں سے سنا ہے اور اس نے پوسٹ لگائی ہوگی، انشاءاللہ وہ آپ خود اس سے کنفرم کر لیں گے. انشاءاللہ اس کا کمنٹ ہم ضرور ریکارڈ کریں گے. ہاں. لیکن وابڈا آپ کہہ رہے کہ وابڈا ہمارے بیچ دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت بہترین کوشش میں لگے ہوئے ہیں وابڈا والے، اور ہم لوگ بھی جو ہے نا اس دفعہ مسجد میں بیٹھ کے ہم نے حلف لیے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سارے پر امید ہیں. ایک دوسرے پہ ہمیں 100% اعتماد ہے. اچھا، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل ہے بھائی. ناظم صاحب میں آپ کا ایک اور کمنٹ، ہم آپ کا کمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں. اب چلتے ہیں بخت بلند کی طرف. بخت بلند صاحب. جی جناب. آواز آ رہا ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل. میرے خیال میں گفتگو آپ نے بھی سنی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھی، آپ نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے. تو میرے خیال میں اس پس منظر کو جس طرح آپ سمجھ سکتے ہو شاید کوئی اور نہ سمجھے.
तो जरा आप क्या समझते हो, इसमें कोई हकीकत है या आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक्शन कमेटी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? जरा हमारे नाजरीन को बता दी। सबसे पहले तो जी7 में आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए जो है ना हमसे राब्ता किया। और स्पेशली मैं अपने कोहिस्तान के ये नौजवान जो इस वक्त आप लाहौर बैठे हुए हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में वहाँ पे आप डिग्री के लिए मतलब अपनी एफर्ट जारी रखे हुए हैं, तो मुझे इंतहाई खुशी है, इंतहाई कि हमारा कोहिस्तान आज हमारे आंखों के सामने जो है ना वो दूर दूर बैठ के भी अपने कोहिस्तान के हालात के ऊपर जो है ना उनका नजर है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना कल एक पोस्ट चली थी, मुनीबुल्लाह नाम का कोई एक लड़का है, आजकल तला मामून साहब के साथ जो है ना बड़ा उसके करीबी रिलेशन है और उसकी एक्टिविटीज में बड़ी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो उसके कंटेंट्स में कल आज सुबह से जो है ना वो काफी सोशल मीडिया के ऊपर इस बात की प्रचार शुरू हुई। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो भी मुझे सुन रहा है आपकी वसातत से, तो मेरी सब नौजवान स्पेशली जो हमारे यंगर जनरेशन है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम कोहिस्तान से है, हमारा मरना जीना कोहिस्तान के लिए है और हमने हर उस चीज को आगे सोशल मीडिया के ऊपर डालना है जो हमारे हक़ाइक़ के बरअक्स ना हो, हक़ाइक़ के मुनाफी ना हो और जिसमें ग्राउंड रियलिटी भी हो और हकीकत भी हो। हम हर उस चीज से परहेज करें कि जो सोशल मीडिया के ऊपर डाल के 2 मिनट के लिए देखे ना, इंसान को अपना ज़मीर जो है ना मुतमईन रखना चाहिए। इंसान का जब ज़मीर मुतमईन हो तो 1000 बार सोशल मीडिया के ऊपर आपकी किरदार कुशी करे कोई, तो मैं नहीं समझता और मेरा ईमान ये है कि आपका ज़मीर आपका मुतमईन है एक चीज के ऊपर। अगर सोशल मीडिया नहीं पूरी दुनिया के ऊपर आपका किरदार कुशी करे कोई, तो उसमें जो है ना कोई जाके आखिर वो उसमें कोई सर और पाँव नहीं होता। जहाँ तक आपने कहा ये अफजल शाह के हवाले से, तो ये सिराज भाई ने आपके साथ जो है ना इस वक्त वो भी मौजूद है हमारे उसमें। जी तो अफजल शाह एक्शन कमेटी का हिस्सा था, हमने मिल बैठ के जो है ना ये प्लेटफॉर्म तश्कील दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मतलब हमने जो हलफ लिख के उसके ऊपर दस्तखत किया था, उस पे दस्तखत करने के बावजूद कि हमने एफर्ट करनी है अपने इज्तिमाई मुफाद के लिए, ठीक है ना जी, लेकिन जो पिछले कई जो मुतवातिर यहाँ पे हमारा उसकी बिल्डिंग के साथ हमारा कैंप लगा हुआ है, पिछले कई हफ्तों से जो है ना वो यहाँ मुतवातिर हमारी जो एक्टिविटीज हुई है, पिछले जुमे को जो हमारा जलसा हुआ है, इससे अगले जुमे को फिर हमारा इसमें एक्टिविटीज में वो शरीक नहीं हुई। इस सवाल का जवाब जो है ना बखूबी आप उससे अच्छी तरह ले सकते हैं वो क्यों नहीं शरीक हो रहे हैं। मतलब उसने एक्शन कमेटी के छोड़ दिया है उसकी एक्टिविटीज में, हालांकि उसका बड़ा भाई अब्दुर्रहमान और उसका फर्स्ट कजन हिजाब खान वगैरह वो मुतवातिर यहाँ पे आके जो है ना इसमें बैठे हुए होते हैं। अब जहाँ तक कल से जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा है उसकी ग्राउंड रियलिटी और हक़ाइक़ क्या है, उस पस मंजर में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया है और वो वीडियो चूंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है और नेटवर्क का इश्यू खत्म हो के अपलोड होगा तो इंशाल्लाह वो सारे में जो है ना वो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, एक एक बंदा उसको सुनेगा। कतई तौर पे इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पे बैठ के ऐसा कोई अमल हमसे आज तक न सरजद हुआ है और न इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में सरजद होगा कि हम कोई किसी प्लेटफॉर्म को आज तक हमने अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, चाहे वो तहरीक हुकूक कोहिस्तान हो, जिस तरह सिराज भाई ने बताया कि उसका आखिरी जो है ना इसलिए हमारे बीच में जो है ना वो उसको आगे हम जारी इसलिए नहीं रख सके, यहाँ पे जो है ना आर और पार वाला जलकोट और ची वाला एक टेंशन बना लेबर के ऊपर, तो उसमें जाके जो है ना वो ब्रेकअप हुआ उस तहरीक का। इसके बाद ये जो हमने एक्शन कमेटी का जो प्लेटफॉर्म और वजूद में लाया है, देखिए यहाँ पे 4600 मेगावाट का बिजली का प्रोजेक्ट बन रहा है दासू डैम, उसके ऊपर यहाँ इतने मसाइल हैं अगर मैं डिटेल में जाऊं तो चूंकि इतनी लंबी चौड़ी डिटेल के लिए जो है ना आपके पास टाइम नहीं होगा और यहाँ पे उस चीज को हम आगे लेके नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये है भाईजान के जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली 2 चीजों के ऊपर हवाले से उसको मैं पहले क्लियरिफिकेशन उसकी दे दूं कि खास कर कह रहे हैं कि जी 4 इंस्पेक्टर को भर्ती किया गया। बिल्कुल 4 का नाम भी 2 का नाम भी बाकायदा आपने देखा है मेरा। हाँ 2 का नाम है हमायून और अपना क्या नाम है अमीरजेद। बिल्कुल ये दोनों मेरे भतीजे हैं, ठीक है।
अब मसला ये है कि यहाँ लेफ्ट राइट साइड पे, एक बात को आप समझने की कोशिश करें, यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड पे काम हो रहा है और दोनों साइड पे मुख्तलिफ जगहों पे जो कंट्रैक्टर हैं, जो चाइना कंपनियां हैं, उनके कैंप बने हुए हैं। तो जहाँ जहाँ मतलब हमारी वाली सी वाली साइड पे कस में बना हुआ है, जाल में बना हुआ है, उस तरह आगे चल के इस वक्त जो है ना वो अपना हमारे उधर दुगा जहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी है वहां पे अभी कैंप पिछले 1 साल से बना है। इस तरह इधर जलकोट वाली साइड पे जो है ना उछार में बना हुआ है, और इसी तरह जो है ना अपना कईघा में बना हुआ है, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे ये लोगरू में बना हुआ है। तो इन जगहों पे जिन जिन जगहों पे कैंप बना है, तो सबसे पहले जो वो लोगों का ये सारे लेफ्ट राइट साइड दोनों जगहों पे ये है कि जहां जिसकी जमीन में कैंप बनता है तो वो जमीन के जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं पहले रोजगार के मौके उनको दिया जाता है। बिल्कुल उनको दिया जाता है। ये कोई मतलब डीएससी की मुलाजिमत नहीं है, वापडा की नहीं है। और ये जो मनगढ़ंत और बेबुनियाद 4 इंस्पेक्टरों के हवाले से जो सोशल मीडिया पे बात गर्दिश कर रही है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबर है। अच्छा, अब हुआ ये जनाब, इसमें एक कागज जरा बराबर देखें, इदारे यहाँ पे मौजूद है। अब जिसने इल्जाम लगाया है, मेरी इनसे दरख्वास्त ये है कि वो सामने आए, मैं उनके साथ खुद चलने के लिए तैयार हूँ, उसी चाइना कंपनी के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ, यहीं डीएससी के अंदर भी जाने के लिए तैयार हूँ, यहीं वापडा के ऑफिस जीएम ऑफिस में भी जाने के लिए तैयार हूँ। वो निकाल के मुझे दिखाएं कि कौन से 4 इंस्पेक्टरों की जो है ना अपॉइंटमेंट किसी एक्शन कमेटी के मेंबर लेट सपोज मैंने करवाई है, तो वो चीज सामने तो ले आए कम से कम मुबहम सी। लेकिन बदकिस्मती ये है भाईजान Z70 के जो आप हैं, तो बदकिस्मती बिडलक जो यहाँ कोहिस्तान की है ना, यहाँ पे बुहतान इतना है ना, बुहतान। और वो बुहतान क्यों है? बुहतान इसलिए कि हम इंफरादियत के अंदर इतनी मतलब जगड़े हुए कौम है ना कि हम इज्तिमाई सोच के ऊपर, इज्तिमाई काज के ऊपर आज तक हम इकट्ठे खड़े नहीं हो सके। और ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती और पसमानदगी की सबसे जो बुनियादी सबब है ना, वो यही है। अब जो भी यहाँ पे आके अपना टाइम दे के अपना जो है ना जाती पैसे लगा के एक इज्तिमाई काज के लिए खड़ा होता है, तो वो कुछ इदारे इस तरह हैं कि उनका तरीके वरादत ये है कि वो लोगों को इस्तेमाल करके जिस काज के ऊपर जो प्लेटफॉर्म खड़ा होता है उनको ब्लैकमेल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो है ना आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बखबिलान साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं। आपने कहा कि 4 इंस्पेक्टर आपने भर्ती नहीं करवाई, आपने नहीं, किसी एक्शन कमेटी के मेंबर ने नहीं करवाया, एक बात। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ जमीन के हवाले से भी कुछ बातें आपने शायद देखा है, इनमें कोई हकीकत है, जरा वो भी बता दे। अब छोले पैकेज के हवाले से एक बात कर रही है कि जी उसने 10 जो है ना अपने रिजेक्टेड छोले थे जो है ना उनको जो है ना बहाल करवाया है। बिल्कुल। अब भाईजान यहाँ पे सूरत-ए-हाल ये है, और ये जो बंदे सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट शेयर करें, खासकर अफजल शाह को इस बात का अच्छी तरह इल्म है। और वो हमारे माशरे का, मैं ये समझता हूँ कि एक मतलब बड़े संजीदा आदमी है, हेलो जी आ रहे हैं, आपकी आवाज बता दे। बड़े बुरदबार किस्म के आदमी हैं, उनको कम से कम ये चाहिए कि कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई खबर लगाने से पहले उसकी सही तरीके से जो है ना उसकी छानबीन करें। अब जो छोला पैकेज के हवाले से सूरत हाल ये है कि यहाँ पे हर एक बंदे का छोला पैकेज है। यहाँ पे रिजर्वायर कमेटी के नाम से एक 80 रुकनी कमेटी काम कर रही है। बिल्कुल। तो वो 80 रुकनी कमेटी जो है ना, रिजर्वायर का मतलब ये है कि डैम जहाँ पे बन रहा है ना, जहाँ पे बंद बांधना है, उससे पीछे जो इलाका है उसको रिजर्वायर कहा जाता है। मैं भी उस रिजर्वायर का जो इलाका है वहाँ मेरी प्रॉपर्टी है। हफीज जो है यहाँ एक्शन कमेटी का मेंबर है, उसका भी रिजर्वायर के अंदर प्रॉपर्टी है। मौलाना नूर नबी साहब जो हमारे पास इस वक्त है एक्शन कमेटी में, उसकी भी प्रॉपर्टी रिजर्वायर के अंदर, सुमुर नाले के अंदर आपने एक बड़ा होटल देखा है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब इसी तरह हर बंद बादशाह पूरा तासीर रिजर्वायर के अंदर आता है। अब यहाँ पे रिजर्वायर कमेटी जो सिरूनी कमेटी है उसके थ्रू पे छोला पैकेज के हवाले से स्पेशली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और वापडा ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट मतलब एक कमेटी बनाया। कमेटी बना के वो 80 रुकनी से कोई 6 बंदों को मुंतखब किया है, और बाकी यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है जवाहर रहमान साहब, उसकी चेयरमैनशिप में, जिसमें डीएससी का आमिर नजीर साहब हैं और वापडा से 2-4 नुमाइंदे हैं।
उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी इसलिए बनाई है कि जिन जिन लोगों के छोला पैकेज थे वो पहले रिजेक्ट हुए हैं, तो वो कमेटी असरीनो उसके ऊपर रिव्यू करेगी, वो कमेटी असरीनो उसके ऊपर रिव्यू करेगी। तो यहाँ पे फिर तरीका उन्होंने इस तरह का वजह किया है कि भाई आप उस कमेटी में जो है ना हर वीकली हर जुमरात को उस कमेटी का एक मीटिंग होता है। तो हर एक इलाके के लिए एक एक बंदे का इंतखाब किया है। हमारे इलाके सीयू के लिए अपना जो दुगा जो पीछे हमारा जो जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसके लिए यहाँ पे जबर खान नाम का एक है और जब्बार है इस तरफ जलकोट वाली साइड से, और एक गंजा से और मुख्तलिफ एक साजिन से राजा भाई हैं। तो उस दिन उस तरह हुआ है कि इसका हर एक के कम से कम 10-10, 5-5, 6 से 7-7 छोले जो है ना वो उन्होंने रिजेक्ट करके उन्होंने रिजेक्ट केस में डाला है। अब उनके लिए फिर दोबारा रिव्यू करवाने के लिए 4 महीना पहले मेरे पास सारा और रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने डीसी साहब को दरख्वास्त दिया। ये एक्शन कमेटी बनने से बहुत पहले की बात है। तो वो केसेस मेरे कोई 4 केसेस मेरे फर्स्ट कजन के 2 नाम और इस तरह मेरे भतीजों के 2 नाम आए उसी कमेटी के प्लेटफॉर्म पे। तो ये कम से कम मेरे ख्याल में 15-20 दिन या महीना पहले की बात है। अच्छा, ये पहले की बात है, लेकिन अड्रा भी हुआ है। हाँ, अड्रा भी हुआ है इनका। किस चीज का ऑर्डर? जो छोला पैकेज है या जो आपके इंस्पेक्टर भर्ती करवाया है? नहीं, छोला पैकेज नहीं हुआ। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। जो कमेटी बनाई गई है ना वो कमेटी में अस्सी रुकनी कमेटी के कोई 5-6 बंदे अस्सी रुकनी कमेटी के हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया इस पे, मैं आपकी बात पे समझ गया, मुकम्मल समझ गया। लेकिन अभी आपके जो छोला पैकेज है ये बहाल हुई है या नहीं? नहीं ना, नहीं हुए हैं ना। मसला इस मैं वो आपको डिटेल बता रहा हूँ ना इसकी। तो वहाँ पे अब ये था कि हर जुमरात को एक मीटिंग होनी है, हर जुमरात को हर इलाके के लिए एक दिन मुख्तस किया हुआ है। अब एक दिन हमारे उस इलाके का कई दुगा मिलार का आ गया, तो उसमें मेरे 4 बंदों के नाम आए। ये हमारे एक्शन कमेटी के थ्रू पे नहीं, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है के थ्रू पे। अब वहां मैंने अपना एक्शन कमेटी के दोस्तों से पूछा कि भाई मेरे बंदों के वहां पे नाम आए तो आप लोग इजाजत दें तो मैं उसमें जाके अपना केस रिप्रेजेंट करूं। दोनों ने कहा बिल्कुल बेशक आप जाएं। जब मैं वहां पे गया तो इस बात की गवाह जब्बार खान भी है, अपना मेरा कजन है गुलाब भाई वो भी है, राजा मोहम्मद आरिफ भी है, हाजी वलीदाद भी हैं, और ये जो जबर खान है वो भी है, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ये कलेक्टर साहब और आमिर नजीर साहब और ये एजाज साहब ये सारे बैठे हुए। अब वहां पे जाके मेरा पॉइंट, मैंने अपने वो सारे केस रिप्रेजेंट किया कि किस बुनियाद के ऊपर आपने हर बंदा जाके अपना केस वहां पे रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने अपने वो 4 केस रिप्रेजेंट करने के बाद मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई 4 इदारों ने मिलकर एक डेटा मुरतब किया है। जो एक इदारा उसमें रेवेन्यू है, एक SNW है, एक वापडा है, एक DHC है। उन्होंने बैठ के एक रिपोर्ट मुरतब डेटा मुरतब किया है। उसके बेस पे स्टीयरिंग कमेटी ने एक फैसला लिया है कि इन 4 इदारों ने मिलकर एक जो रिपोर्ट मुरतब किया है जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम और खसरा है तो उसको आप छोला पैकेज देंगे। अब आप लोगों ने वो कानून को छोड़ के यहाँ पे फील्ड वेरिफिकेशन के हवाले से 25 रुकनी एक कैबिनेट बना के कमेटी बना के आप लोगों का हक ज़ाय कर रहे हैं। लिहाजा जो ये मैकेनिज्म आप लोगों ने बनाया है ये मैकेनिज्म मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे काबिल कबूल नहीं है। ये कह के मैं वहां से उठ के निकला हूँ। निकलने के बाद जब्बार भाई ने मुझे कहा कि फिर आपकी 4 छोला 4 जो मेरे कजन और भतीजों के थे कहा कि ये आपको न दें। तो मैंने जब्बार भाई को अजराए मजाक मैंने कहा यार अगर आप नजीब से देना है तो बिल्कुल बेशक मुझे न देना। बिल्कुल। तो वो कह के मैं वापस निकला हूँ। उसमें हकीकत इतनी सी है कि अब 2 मिनट के लिए मुझे आप बताएं कि मैं अगर कोहिस्तान की मुफाजमत के लिए किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूँ तो यहाँ मेरी जो जाती प्रॉपर्टी होगी उसका मैं मुआवजा नहीं लूंगा, मेरा जाती जो छोला होगा उसका मैं मुआवजा नहीं लूंगा, या मेरे जमीन पे आके कोई कैंप बनता है तो वहां पे मेरे लड़का या मेरा भतीजा या मेरे भांजे का या मेरे कजन का हक नहीं है वहां पे जॉब करने का। आया अब ना लेफ्ट और राइट साइड पे जिसके जमीन में जो कैंप बने हुए हैं
जो हाँ अलबत्ता एक बात और भी आपको याद दिला दूं, ये जो मुनीब जो युद्धुल खैल वाला लड़का है ना, जी जी, उन्होंने शुरू से हमारा जो प्लेटफॉर्म एक्शन कमेटी बनी थी, इनकी पूरी बिरादरी ने शुरू से, हालांकि 2 दिन मुतवातिर ये मीर गजन सिकंदर और इनका एक युद्धुल खैल का एक और हाजी साहब हैं बड़े मोतबर, वो आके हमारी इस कमेटी को हम जो है ना कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, बना रहे थे। 2 दिन मुतवातिर उन्होंने शिरकत करने के बाद जब हमने कमेटी फाइनल किया तो ये लोग उठ के चले गए। जाने के बाद इनकी पूरी युद्धुल खैल की जो कम्युनिटी है, जो खेल है, उन्होंने पूरा का पूरा हमारी इस एक्शन कमेटी में उन्होंने ऑलरेडी वो हमारे मुखालिफत में उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रचार चलाया और उन्होंने बाइकाट करके कभी जो है ना इसका हिस्सा नहीं बने हैं। अब हिस्सा नहीं बने हैं। ज्यादातर मेरे ख्याल में आपके तोपों का रुख आज मुनीब की तरफ हुआ है, तो हमारे प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला है। मैं आखिर क्वेश्चन करता हूँ सिराज नाजिम साहब। नाजिम साहब आप मेरे ख्याल में सुन रहे हैं। नाजिम साहब, जिस वक्त आपने कमेटी बनाए थे तो आपका मंशूर क्या था एक्शन कमेटी का, जरा हमें बता दें, आपकी मेहरबानी होगी। हमारे मंशूर ये है, देखो हमने हलफ पे दस्तखत किया है, हलफ पे हमने जो है ना पाबंद हुए हैं। हमारा मंशूर ये है कि अपर कोहिस्तान के जितने भी बाशिंदगान हैं जी, उनकी मुफादात जिसके भी मफादात होंगे उन मफादात को हासिल करना हमारा सबसे प्रायोरिटी पे ये मंशूर है। अच्छा, अपर कोहिस्तान के जितने बाशिंदे हैं उनका मुफादात चाहे इनफरादी हो या इज्तिमाई हो? जी जी, सब हमने जो है ना उस पर स्ट्रगल करना है जी, कोशिश करनी है। अच्छा, ये आपका मंशूर था जी। एक मंशूर। अब नाजिम साहब, अगर ए से आपने कोई मंशूर रखा था कि किसी के कोई जाती मामला हो तो अपनी जातियात को छोड़कर कोहिस्तान को तरजीह दे, ये तो हर एक हलफ में हम लिखते हैं ना, हमेशा इसका क्वेश्चन का एक मिनट सिराज भाई, इसका थोड़ा सा मुझे मौका दे, मैं जवाब दे दूं। मुझे आप जी7 टीवी वाले आप मुझे ये बताएं, मंशूर हमारा प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रायोरिटी हमारी ये है कि बैरूनी जो भर्ती जो धड़ाधड़ बीएससी के अंदर, वापडा के अंदर जो है ना, चाइना कंपनी के अंदर इस वक्त कश्मीर से और बाकी जगहों से 3000 लेबर और सुपरवाइजर और मुख्तलिफ मन में जो है ना वहाँ पे लोगों को लगाया गया है। बीएससी में 1000 मतलब 100 के करीब जहाँ पे लोगों को लगाया। वापडा में आप इवन जीएम के गेट के ऊपर जो क्लास 4 जो बंदे को पर्ची बाहर आता है ना, वो भी लाहौर और पिशावर का बंदा भर्ती है। हमने ये कहा, हमारे मंशूर में प्रायोरिटी पे ये है कि जो हमारे बैरूनी भर्ती के हवाले से जो हमारे लोगों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है उसको हमने रोकना है। एरिया डेवलपमेंट फंड जो 17 अरब रुपए यहाँ पिछले 2012 से पड़े हुए हैं, इस वक्त तो वो चारों तहसील के ऊपर, उसके ऊपर जो है ना रोड नहीं बने, उससे वाटर सप्लाई कहीं नहीं बनी, उससे बाकी कोई तामीर नहीं हुआ। एवं हमारे यहाँ पे बने हुए स्कूल गिरा कि आज तक जो है ना हमारे बच्चे गर्मियों में जो है ना बाहर धूप पे बैठ के तालीम हासिल करने के लिए मजबूर हैं। हमने उन चीजों के ऊपर स्ट्रगल करनी थी। हमारे मंशूर में ये नहीं, देखो ना, ये सेंस, कोई कॉमन सेंस की बात होती है। मुझे आप बताएं कि आप पटन के 2 मिनट के जो है ना रिहायशी हैं जी, अब आप मुफाजामा के लिए एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आया मुफाजामा के लिए काम कर रहे हैं तो आपका जमीन का जो मुआवजा होगा, तो आप मुफाजामा के लिए काम करें तो वो जमीन का मुआवजा आप छोड़ देंगे? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा थी, मैं कह रहा आप लोगों ने बख्तियार साहब आजकल आप लोग तनकीद के जद में आते हैं, एक्शन कमेटी वाले इसी हवाले से आते हैं। मैं इसलिए आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोगों का कोई मंशूर तो होगा ना। जिस तरह देखो, आपने कहा कि भाई, आपने कहा कि मेरा जमीन था, मुझे मेरी बात सुने जी। देखें, जिस दरख्त पे अगर फल नहीं होते हैं ना, उस पे कोई भी पत्थर नहीं फेंकता है। जिस दरख्त जो फलदार दरख्त होता है ना, उस पे हर एक बंदे की कोशिश होती है कि मैं पत्थर फेंकूं और फल को गिरा के खाऊं। ये वही कहावत है। अब हम लोग जो है ना इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी समझो इसको। मुझे खुशी होगी, कोहिस्तान के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, दिल जान से काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां समेट दे। मैं साथ में एक बात और ऐड करना चाहता हूँ जी7 टीवी वाले भाई, मैं एक बात जाते आखिरी इख्तितामी एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। मैं अपने जात के हवाले से कि मेरी जात के हवाले से मैं इस वक्त यहाँ के केस के ऊपर जहां भी जो भी प्लेटफॉर्म या जो भी फर्द, प्लेटफॉर्म तो छोड़े, जो इवन सिंगल एक फर्द, वो फर्द मुझे बुलाए,
किसी जगह पे जाके वो मेरे ऊपर ये बात साबित करे, चाहे तहरीक हुकूकिस्तान के टाइम का हो या एक्शन कमेटी, कि उस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे जाके किसी ब्यूरोक्रेसी वापडा एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने 1% का अगर जाती मुफाद कोई लिया हो, जाती उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अगर मैंने लिया हो, तो मैं जो भी वो फर्द या जो प्लेटफॉर्म मेरे ऊपर जो भी पेनल्टी रखना चाहे, जुर्माना रखना चाहे, वो मैं अदा कर इंशाअल्लाह रहमान सबसे दिल से जो है ना। बख्त बुलंद साहब, चलो आपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके नहीं, लेकिन आपने वैसे लिया है, कौन सा आपने वैसे कोई लिया है कि नहीं लिया है? ये मुझे आपके प्लेटफॉर्म तो आपने वो तो आपने उधर वो नहीं बताना कि भाई मैं इसी प्लेटफॉर्म का हूँ, ये है वो हो, लेकिन वो तो आपको देख रहे हैं कि आप एक्शन कमेटी का मेंबर है। आपने कभी वाप डालों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश किया है कि नहीं? नहीं, कतई तौर पे मैं हल्फन जो है ना, जिस कलमे के ऊपर हमारे इमाम है ना, मैं इस प्लेटफॉर्म का नाम लेकर आज तक मैं किसी दफ्तर के अंदर नहीं गया हूँ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन अपना इस लफ्ज के साथ मैं कभी किसी दफ्तर के दरवाजे के अंदर नहीं गया हूँ। वो दफ्तर वाले तो सारे आपको जानते हैं ना कि भाई एक्शन कमेटी का सरगर्म रुकन है। नहीं सर जी, मैं एक्शन कमेटी की वजह से मेरी पहचान नहीं है, मैं एक यूनियन नाजिम यहाँ पे रहा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ, इसी वक्त आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं या खबरों के गर्दिश में रहते हैं, तो एक्शन कमेटी के मेंबर है। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, क्लियरिटी और इल्जामात तो लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है ना जवाब देना हमारा हक है, लोगों का पूछना भी हक है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में हमारा टाइम काफी हो चुका है। नाजिम साहब, आप बख्त बुलंद भाई ने जो कुछ कहा है, आप एक्शन कमेटी वाले मुतमईन है? हम 100% अपने साथियों से मुतमईन है, किसी के ऊपर हमारे 0% भी कोई शक नहीं है। अच्छा, आप लोग सारे एक्शन कमेटी के जितने मेंबर है मुतमईन है? इंशाल्लाह बहुत अगर आप चाहें तो आप जो है ना हमारे मीटिंग के दिन आप इधर आ जाएं कोहिस्तान में, और सबसे जो है ना आप इंटरव्यू ले सकते हैं कि हमारे कुछ साथियों के ऊपर कैसे उन्होंने ठेके लिए, और कल जो है ना हमारे ऊपर भी दो बनाएंगे, हथकड़े बनते रहते हैं, क्योंकि ये लोगों की कोशिश है कि एक्शन कमेटी नाकाम हो और हम पहले की तरह जो है ना हुकूमती सरगुने बनते रहे, और इंशाल्लाह इस दफा हम ऐसा कभी भी होना नहीं देंगे। मैं कोशिश करूंगा जब कोहिस्तान आए तो इंशाल्लाह आप लोगों का सारे एक्शन कमेटी के जितने मेंबर हैं इनके एक कमेंट जरूर रिकॉर्ड करूं। लेकिन आज मेरे ख्याल में हमारा टाइम पूरा हो चुका है। आप दोनों का बहुत मज़ीद का बहुत शुक्रिया एक्शन कमेटी के। और प्रोग्राम के आखिर में एक बात और कहूं कि अफजल शाह साहब है या जो भी है जिसने पोस्ट किया है, जिसके पास जो भी हकायक है सबूतों के सामने अगर वो लाना चाहता है, हमारा प्लेटफॉर्म इसके लिए ओपन है। जिस टाइम उसने कहा हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो वेलकम भाई, जब भी आओ सो वेलकम। दोनों आपने बखूबी सुना, एक्शन कमेटी के मेंबर थे सिराजुद्दीन साबिक़ नाज़िम रह चुके हैं, बख्त बुलंद भी साबिक़ नाज़िम रह चुके हैं, और एक जो इल्ज़ामात तराशी किया गया आपने बखूबी देखा, पूरा एक लंबी कहानी इस लेस उसने पढ़ी और ये हुआ है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि एक्शन कमेटी, हम भी काफ़ी पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं कि एक्शन कमेटी अपने मुफादात के ऊपर कहीं तकसीम ना हो, कहीं इसमें इख्तिलाफात दरारें न पैदा हो। मलक अफजल शाह साहब से के बारे में उसने एक पोस्ट किया था और बखूबी आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करते हैं। तो हमने अभी भी इसको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल नंबर ना मिल सका, इसके साथ हमारी राबिता ना हो सकी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। अपने मेज़बान ज़िया खान कोहिस्तानी को दीजिए इजाज़त, अपना रखे ढेर सारे ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।